بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تمام کسی کی تعریفات بڑائی و بزرگی و کبریائی و حمد و ثنا صلی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہم تمام بنی انسان کو پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا فرمانے کے بعد انبیاء اور رسول کا ایک سلسلہ اس کائنات اور دنیا کے اندر مبعوث کیا تاکہ ان کی رہنمائی میں ہم دین اسلام کو جان سکیں اور شرک و بدعات و خرافات سے پاک ہو سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے فضل، اس کی رحمت اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ سامعین اور ناظرین آج کے اس مصروف اور مشغول ترین دور میں وقت نکال کر اللہ کی کلام یہ دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے، اس کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یقین جانیں کہ یہ ہماری بہت بڑی قربانی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ الہ العالمین تو ہمیں اور اس درس کے اندر جو بھی ہماری بھائی بہن جڑے ہوئے ہیں انہیں اور اس درس کو کامیاب کرنے کے لیے جس طرح کی جو بھی محنت و مشقت و تعاون جو بھی افراد ہمارے بھائی بہن کر رہے ہیں، اللہ تو ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ درس کے شروع سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ درس کے آخر میں بھی اس کو رکھا جائے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ کوششیں اپنی طور پر جاری ہیں، کوشش میں کوئی کمی نہیں۔ درس کی شروعات جس طریقے سے عزیز پرجوش انداز میں ہوا تھا یقیناً وہ قابل دید تھا، اور بہت ساری چنوتیوں اور مسائل کے باوجود بھی آج درس چل رہی بھی قابل دید ہے، الحمدللہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ بیان فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور برائی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ آیت کریمہ اگر چھوٹی سی آیت ہے لیکن معنی اس کا بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ کہیں پر بھی خیر کا کام ہو، بھلائی کا کام ہو، چاہے جس طریقے سے ہو، ہم ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں کہ بھائی آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم بھی، آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، ہماری کیا خدمات ہو سکتی ہے آپ ان سے کہیں۔ یہ جذبہ، یہ شوق، یہ وہ چیز ہے جو معاشرے کے اندر اچھائی اور نیکی کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہ درس حدیث، درس قرآن جو ہے اللہ کی توفیق سے اور اس کی رحمت سے، اس کی مدد سے، اس کی نصرت سے ماشاءاللہ ہر ہفتے جاری وساری ہے۔ دعا اللہ سے کہ اللہ قیامت تک جاری وساری ہو، آمین۔ لیکن بس درخواست جو اصل چیز کرنی ہے کہ یہ خیر کا کام ہے، یہ تقویٰ کا کام ہے۔ آج کے دور میں بالخصوص نوجوانوں کے ساتھ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم وقت نہیں ہمارے پاس کہ ہم اللہ کی کتاب کو سنیں یا سمجھیں، ہے کہ نہیں؟ اس میں بھی ہمارے جو بھائی کوشش کر رہے ہیں، یقین جانیں کہ بہت بڑی کوشش ہے، یہ آسان نہیں ہے، عام بات نہیں ہے۔ مطالعے کے وقت ایک جملہ میرے سامنے سے گزر رہے تھے اور وہ رونے والا جملہ تھا کہ ہم لوگ مطالعہ جب کرتے ہیں تو بہت سارے اسلاف کی جب باتیں اور ان کی کمنٹس پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کمنٹس آج کل کہاں ہے فیس بک اور انسٹاگرام وغیرہ پر، جو ان کی کتابوں کے اندر درج ہے۔ وہ
جو جملہ تھا کہ ہم کبھی بھی اللہ کی عبادت کے لیے نہیں روتے، دین کے لیے کوئی نہیں روتا آج کے زمانے میں۔ آج کے زمانے میں انسان کیوں روتا ہے؟ اگر اللہ کسی کے اپنوں کو چھین لے، موت دے دے تو روتا ہے۔ اگر کوئی انسان بہت کما کر بنا لیا ہے، وہ اسی طریقے سے بگاڑ ہو جائے، اس کے اندر خرابی آ جائے تو اس کے لیے روتا ہے۔ اگر انسان کی کوئی محبوب ترین چیز کو نہ ملے تو اس کے لیے روتا ہے۔ لیکن ہم نے ایسے لوگوں کو بہت کم پائے کہ دین کے لیے رو رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اتنا بہترین اور دین کو چھوڑنے والا جملہ ہے کہ یقین جانیں کہ ہم لوگ بھی خود اسی میں شامل ہیں۔ کبھی یہ لوگ دین کو نہیں روتے کہ اللہ جو دین تو نے دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ، اس دین میں جو کمیاں ہمارے اندر اللہ سے ٹھیک کر دیں۔ اللہ وقت گزر رہا ہے، وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس کمیوں کو تو کھڑا کو پورا کر دے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں دین کے لیے رونا چاہیے۔ جیسے ہماری بلڈنگ عمارت ہے، اللہ کے زلزلے میں دھنس گئی، اب ہم 40 لاکھ کی بلڈنگ بنائے تھے، جھپک سے ختم ہو گئے، رو رہے ہیں کیسے ہو گیا، آسمان سے زمین پر آ گئے۔ وہی اسی طریقے سے ہمیں رونا چاہیے کس چیز پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں۔ اللہ بہت کمی ہے ہمارے اندر سے، مکمل طریقے سے ہم پر عمل پیرا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں دین چاہیے۔ اور آپ جانتے کہ حضرت علی جب واقعہ میں نے بیان کیا تھا پچھلے ہفتے کہ اپنی داڑھی کو پکڑ کر تہجد کی نماز میں دنیا کو لان تان کرتے تھے، گئے دنیا تو ان کو لبھا نہیں سکتا ہے، دنیا تو ان کو بہکا نہیں سکتا، یا اللہ مجھے اس دنیا سے بڑی نفرت ہے، اللہ اس دنیا کو تو پسند نہیں کرتا تو میں کیسے پسند کروں؟ جب تجھے یہ دنیا پسند نہیں ہے تیرے بندے کو کیسے پسند ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہی ہونی چاہیے۔ سلسلہ اس کا ہے قرآن۔ یہ چیزیں ہماری طرف کب پیدا ہوتی ہیں؟ آٹومیٹک تو کوئی چیز ہوتا نہیں، کیا یہ سلسلہ ہے درس قرآن، جس جذبے جس شوق سے ہم نے کچھ شروع کیا تھا، اس شوق کو بھی سلام ہے، اور جس طریقے سے ہمت بہمت کام چل رہا ہے الحمدللہ اس کو بھی سلام ہے۔ لیکن کوشش یہ ہے جو بھی آن لائن میں ان سے بھی درخواست ہے، آف لائن والوں سے بھی درخواست ہے کہ ہم اپنے ملنے جلنے والوں کو اس کی طرف آمادہ کریں۔ جیسے کسی چیز کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے کل حقیقہ کی دعوت کل آپ کو آنا ہے، وہ اپنے سارے کام کو چھوڑ کر آپ کے یہاں آ جائیں گے۔ اگر کام بھی ہے تو اس کو مینج کرے گا، تو اس کو اس طرح کر دینا ہے، اس کو اس طرح کر دینا ہے۔ بھائی نے دعوت دی ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین دعوت ہے قرآن کی دعوت، ہے نا؟ سب سے بہترین دعوت ہے قرآن کی دعوت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے تم پہنچا دو اگر ایک آیت کیوں نہ ہو۔ اگر ایک آیت کا علم ہو گیا تو یہ آپ کی دائتو ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہم لوگ اس کو آگے بڑھانے کے لیے محنت کریں۔ ایک بات اور آخر میں کہتا چلوں کہ یاد رکھیے ایک بات کہ جب ہم کوئی خیر اور بھلائی کا کام کریں گے، اللہ کا کام کریں گے، یہ ذہن میں کوئی مت لائیے کہ آسانی سے ہو جائے۔ ہم لوگ یہیں پر مار کھا جاتے ہیں، ہم کو لگتا ہے تو ہو ہی جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو آزمائے گا، اس کام میں رکاوٹ پیدا ہوگا، اس کام میں برین کو واش کیا جائے گا، اس کام میں مائنڈ کو گھمایا جائے گا۔ ہم لوگ امام ہیں، دن کا کام کرتے ہیں، ہم لوگ کو پتہ ہے 24 گھنٹہ ہم لوگ کا یہی کام ہے کہ کس طرح کے کس ذہنیت کے لوگ آتے ہیں، کیسی کسی چیزوں پر نقطہ کرتے ہیں۔ تو میں اپنا تجربہ آپ کو دے رہا ہوں، حالانکہ میں بہت زیادہ تجربہ کار نہیں ہوں، اللہ نے جو دیا ہے وہی آپ کو دے رہا ہوں کہ رکاوٹ ہوگی، لیکن مومن وہی ہے جو استقامت رہے، اس کو کوئی ہلا نہ سکے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکے۔ تو ہم اس کے لیے آگے بڑھے، اپنے دوستوں کو جوڑے، اپنے بھائیوں کو جوڑے۔ ہم آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں چچیرا بھائی ہے، میرا بھائی، یہ سب کو دعوت دے، بھائی چلیے آدھے گھنٹہ کا معاملہ ہے، تو بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے ہم لوگ، چلے۔ اس قرآن میں اتنی تاثیر ہے، کیا پتا ہمیں اس بھیڑ میں دو آدمی کو اللہ ہدایت دے دے، وہ بے قرار ہو جائے، بے چین ہو جائے، اس کو سکون نہ ملے کہ کب سنیچر آئے یا کب سنیچر آئے، وہ یہاں تک مطالبہ کر بیٹھے گا بھائی اب تک دوری کرو، ہم سے انتظار نہیں ہوگا، بہت لمبا ہو جائے، ڈسٹینس بڑھ جائے، ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں اور آپ کو سب کو کوشش کرنی ہے، اس کے لیے جو مؤثر قدم ہوگا اس کو میٹنگ کریں آپ لوگ، اس قدم کو، اس اسٹیپ کو لیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ نے اگر آپ لوگوں کو چنا ہے تو اتنی بڑی بستی میں اللہ آپ ہی لوگوں سے محبت ہے، اللہ کو آپ ہی لوگوں سے امید ہے۔ بہرحال آج کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 150 سے لے کر جہاں تک اللہ کی مرضی ہو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم لوگ کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 150،
बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन, बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मौला है और वही बेहतरीन मददगार है। असल में मौला का माना होता है दोस्त। वली से मौला है, वली का माना क्या होता है? वलीउल्लाह, अल्लाह का दोस्त। दोस्त के माना होता है, मौला का माना होता है दोस्त। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह माइदा में भी बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है मोमिनों का दोस्त है। ये वो दोस्ती नहीं जो हम लोग दुनिया में करते हैं। दोस्त का मतलब मददगार का होता है। इसीलिए आदमी पूछता है कि दोस्ती का मतलब क्या है, कहते हैं मददगार। दोस्ती का मतलब क्या है? मददगार। मददगार किसको कहते हैं? जो एक दूसरे की मदद में लगा रहता है उसको मददगार कहते हैं। दोस्त वही है जो हमारी मदद करे, हम उसकी मदद करें। दोस्त वो नहीं कि हमारा दुख देखकर पीछे हट जाए, बैक स्टेप ले ले और खुशी देकर आगे बढ़ जाए, उसको दोस्ती नहीं कहा जा सकता। यहाँ कहा जा रहा है बलिल्लाहु मौलाकुम, बल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला है, तुम्हारा दोस्त है, मददगार है। हमें मदद कौन देने वाला है? अल्लाह ताला पहुंचाएगा। अल्लाह की मदद हमें शामिल हाल है। वह हुआ खैरुन नासिरीन, और एक लफ्ज और आता है मददगार के लिए नसर। वल्लाहु वह हुआ खैरुन नासिरीन, अल्लाह बेहतरीन मददगार है, बेहतरीन मदद करने वाला है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी मुसीबत पर कंट्रोल हो, जो मसाइब, जो मुश्किलात, जो परेशानी अल्लाह की तरफ से है, वो चीज़ें आसानी में बदल जाए, सब्र हमको हासिल हो जाए, तकलीफ हमसे दूर हो जाए, तो कैसे होगा? एक ऐसे मददगार को तलाश करना होगा जिसके जरिए से हमारी चीज़ें दूर हो जाए। मिसाल के तौर पर एक आदमी बीमार है और डॉक्टर ने कह दिया कि उसको इलाज के लिए 1 लाख रुपया लगेगा। ऐसी सिचुएशन पे हम अपनी ज़मीन को जानते हैं कि हमारे पास 10 से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं है, सवाल है 90,000 का। वहाँ पे हम क्या सोचते हैं कि ऐसा कोई मददगार मिले तो हमारी बात को सुने और हमारी मदद को तैयार हो जाए। ये मायने बात आती है ना। उसी तरीके से दुख, मुसीबत, परेशानी के आलम में या खुशहाली क्यों ना हो, हर तरह के आलम में हमारे माइंड में बात आनी चाहिए कि अल्लाह बेहतरीन मददगार है। उसकी मदद जो है हमेशा शामिल हाल रहनी चाहिए हमारे और आपके ऊपर। और अल्लाह से बेहतर कोई मददगार नहीं हो सकता, ये याद रखें। इसी यहाँ पर कहा गया खैरुन नासिरीन, खैर मतलब होता है भलाई। अल्लाह वह हुआ खैरुन नासिरीन, और वो यानी कि अल्लाह बेहतरीन मददगार है। तो जब एक बेहतरीन मददगार के बारे में पता चल गया कि ये बेहतरीन मददगार है, तो कोई नादानी होगा जो उस बेहतरीन मददगार के रास्ते को छोड़ दे। ये असल बोलने का मकसद है। कोई नादान आदमी होगा, भाई होगा हमारा, जो जान रहा है कि इतना बेहतरीन मददगार है और उन्हीं के रास्ते को हम छोड़ दें। उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर सूरह गज़वा उहद के बारे में लंबा चौड़ा बयान किया। जितनी सारी बातें बयान सब गज़वा उहद के ताल्लुक से अल्लाह ने कहा सनुल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुबा, सूरह आल इमरान आयत नंबर 151 क्या अल्लाह ने कहा? सनुल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुबा, अनकरीब हम उनके काफिरों के दिल में रोक पैदा कर देंगे। वो कहते हैं दबदबे, उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल का रुआब, बहुत रुआबी से बोलना मतलब बहुत टाइट चढ़ के। अरबी का जो रोक रोक, अल्लाह ने कहा कि अनकरीब हम काफिरों के दिल में रोक पैदा कर दें। किसका रोक? मुसलमानों का खौफ पैदा कर दें उनके दिलों पर। हमारा खौफ काफिरों पर अल्लाह पैदा कर देगा। किस वजह से? बिमा अशरकु बिल्लाह, इसकी वजह यह है कि ये अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं। मालम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, जिसकी कोई दलील नहीं, जिसकी कोई दलील अल्लाह ने नाज़िल नहीं किया। अल्लाह ने शिर्क के बारे में ये बयान किया कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, अल्लाह ऐसे शख्स को कभी माफ नहीं करेगा जो उसके साथ किसी को शरीक ठहराए। वला यग़फ़िरु मिन दूनि ज़ालिक, और इसके अलावा अगर कोई गुनाह करता है तो अल्लाह माफ करेगा, शिर्क को माफ नहीं करेगा। कुरान क्या कहता है? यहाँ पे जो अल्लाह ने कहा कि हम काफिरों के दिलों में मुसलमानों का रोग पैदा कर देंगे, ये काफिर के दिल पे रोग जानते कब पैदा होगा? अकीदा तौहीद से। याद रखें, अगर अल्लाह के बारे में हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है, हमारा पालनहार है, हमारी जिंदगी मौत का मालिक है, औलाद देने वाला अल्लाह ताला है, मुरादें पूरी करने वाला अल्लाह ताला है, अलगर्ज ये कि जिंदगी के हमारे अंदर जो कुछ भी है सब अल्लाह देने वाला है, तो आपका रोग जो है अल्लाह सामने वाले पे देगा। सामने वाला आपके पैसे से इतना ही डरेगा उतना आपके अकीदे से डरेगा। आज रोग के बारे में क्या समझते हैं कि अगर किसी के अंदर रोग पैदा करना है तो माल कमा। दुनिया को यही सिखाती है कि पॉकेट में पैसा, जेब भरा रहेगा तो लोग आपको पूछेंगे। दुनियावी बातें हैं, हम दीन की बात कर रहे हैं, कुरान की बात कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा
सनुल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुबा, अनकरीब हम काफिरों के दिल में रोब पैदा कर देंगे। इसकी वजह क्या है? बिमा अशरकू बिल्लाह, इस वजह से कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते। मा लम युनज़्ज़िल बिही, जिसकी कोई दलील नाज़िल नहीं। अल्लाह ने कहा ही नहीं तुम शिरक करो, और ये शरीक ठहरा रहे हैं, यानी अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं। फिर अल्लाह ने कहा मअवाहुमुन नार, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। वबीसा मस्वा ज़ालिमीन, और एक बार जालिमों के लिए बड़ा ही बुरी बुरी बहुत ही बुरी जगह है जहन्नम की तारीफ हो। डेफिनेशन, जहन्नम किसके लिए है? जालिमीन के लिए। जालिमीन का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया। बात तो शिर्क की हो रही है, मुशरिक के बारे में होना चाहिए। जुमला ये होना चाहिए था कि वबीसा मस्वल मुशरिकीन, मुशरिकों के लिए बहुत ही बुरा ठिकाना है, बुरी ठिकाना है ना। लेकिन अल्लाह ने जालिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्यों? क्या जुल्म हुआ यहाँ पे? शायद किस जुल्म का जिक्र हो रहा है, किस जुल्म के बारे में? तो शिर्क का जिक्र हुआ है, तो शिर्क ही को जुल्म कहा गया। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने बेटे को नसीहत की, या बुनिया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। ये जुल्म है हकीकत में। इबादत अल्लाह के लिए जायज़ है, उस चीज़ को उठाकर दूसरों के लिए करें, जुल्म नहीं हुआ। सामान हमारा है ना, अब उठा के उसको दे देंगे हमसे पूछे बगैर, जुल्म नहीं हुआ। ये प्रॉपर्टी हमारी है, इस पर कोई कब्जा कर ले, जुल्म नहीं हुआ, है कि नहीं? अल्लाह ने कहा वबीसा मसल ज़ालिमीन, जहन्नम जो है जालिमों के लिए बहुत ही बुरी जगह है। इसका मतलब एक बात याद रखें कि तमाम अंबिया इकराम जो दुनिया के अंदर आए थे, कम बेश 1,24,25,000 जो भी अंबिया इकराम आए थे, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया इकराम आए थे, सब एक ही दावत को लेकर आए थे। वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, ताकि क्या हमने हर उम्मत में रसूल भेजा, उस रसूल का हुक्म था कि अन इअ्बुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत, वज्तनिबुत तागूत, तागूत की इबादत से बचो, एक अल्लाह की इबादत करो। तमाम अंबिया और रसूल इसी दुनिया में आए, अल्लाह की वहदानियत को कायम किया जाए, जो लोग अल्लाह को भूल चुके हैं उनको याद दिलाया जाए, उनको बताया जाए, उनको बावर करवाया जाए कि हमें पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो अल्लाह ने शिर्क के बारे में बयान किया कि अगर काफिरों के दिलों पे रोब हम चाहते हैं तो हमें तौहीद को अपनाना होगा। आज देखिए अगर हिंदुस्तान की बात करें हम, तो आज क्या वजह है कि हमारे दिल में उनका खौफ आ गया, कहीं जा रहे हैं तो बहुत सेफ्टी में जा रहे हैं, जाना है उसे जाना है। वजह क्या है? इसलिए इस सरजमीन पर शिर्क बहुत ज्यादा, अनलिमिटेड शिर्क है। जब शिर्क होगा तो अल्लाह उल्टा करेगा। इसी आयत को समझे ना कि उनके शिर्क करने की वजह से हम काफिरों के दिल पे रोक पैदा कर देंगे। अगर उल्टा नेगेटिव चले जाए तो अगर हम भी शिर्क करेंगे तो उनका रोक हमारे ऊपर। मकसद शिर्क है, जो शिर्क करेगा, इसको मुख्तसर समझ ले, फॉर्मूला याद रखें, जो शिर्क करेगा उसकी अपोजिशन को उस पर अल्लाह मुसल्लत करेगा, अल्लाह मुसल्लत कर देगा। अल्लाह को शिर्क पसंद नहीं पसंद कर। आज इतनी ज्यादा हुए जमीन पे शिर्क हो रहा है, आदमी इत्मीनान सुकून के लिए क्या की तब्दीली करता है। हदीस के अंदर है कि जमीन पर शिर्क होगा तो कभी भी अमल सुकून नहीं। आज जो कितना फसाद है वजह भी शिर्क, हर तरफ लूट मार, कत्ल गारत गिरी, मार पीट टापटक है ना तरफ, इसकी भी वजह शिर्क है। क्योंकि हमें और आपको अल्लाह ने पैदा किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि मेरी इबादत की जाए। क्योंकि अल्लाह ने कहा सूरह जारियात में वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान की तकलीफ का जो मकसद बनाया है, बुनियादी जो मकसद वो अल्लाह की इबादत है। हम अल्लाह की इबादत को छोड़ नहीं सकते। अल्लाह की इबादत मतलब अल्लाह ही की इबादत, सुन लो, अल्लाह की भी इबादत नहीं, अल्लाह ही की इबादत। तो इबादत के लायक और काबिल कौन है? अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ने यहाँ पे जो बयान किया ये गज़वत उहद के बारे में है कि अल्लाह ताला ने क्या किया कि उनके शिर्क करने की वजह से मुसलमानों का रोब उनके ऊपर डाल दिया। और देखिए रोब जो है ना, दबदबा, ये ऐसी चीज है कि 90% आदमी उसके दबदबे से हार जाता है, सामना नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते, घबरा जाता है, इतना डर पैदा हो जाता है कि उसके सामने जाना गवारा नहीं, लड़ना दूर की बात, लड़ना दूर की बात है, तो जाने का गवारा नहीं करे। ये है रोब और दबदबा।
उसके बाद अल्लाह ने फरमाया सूरह आले इमरान आयत नंबर 152 152 वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहू, और तहकीक के अल्लाह तबारक व तआला ने अपना वादा सच सच कर दिखाया। इस तहसूनहुम बिइज़्निही, जब तुम उसके हुक्म से काट रहे, अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया। गज़वा में क्या हुआ? पहले मुसलमान हावी थे, फिर क्या हुआ? माले गनीमत का जो मामला था उसके लिए मुसलमानों में दो राय कायम हो गई। एक ने कहा नहीं, जब तक नबी नहीं कहेंगे या हटेंगे, एक ने कहा नहीं चलो जंग खत्म हो गया, भाग गए दुश्मन, दो राय हो गई। अल्लाह ने इसके बावजूद भी ये जंग न हार हुई न जीत हुई, ड्रॉ हो गया, टाई हो गया, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया। हत्ता इज़ा फशिलतुम, जबकि तुम सुस्त पड़ गए। फशिलतुम क्या होता है कि एक आदमी ओवर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस के अंदर बहुत अपने पर भरोसा, लेकिन कुछ नेगेटिव पर्सन आ जाते हैं और उसको डरा देते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस में गिरावट आना शुरू होता है। आता है कि नहीं आता? इसी तरीके से वहाँ हुआ, जब तीरंदाज हटे फिर हमला हुआ तो पस्त पर गए। एक बार जब तवानाई निकल जाती है दोबारा लाने में टाइम लगता है, एनर्जी। अल्लाह ने कहा हत्ता इज़ा फशिलतुम, जब तक तुम पस्त पड़ गए थे, सुस्त पड़ गए थे, तनाज़अतुम फिल अम्र, और आपस में इख्तिलाफ करने लगे। क्या इख्तिलाफ करने लगे? अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की क़ियादत में अल्लाह के रसूल ने कहा था कि 50 तीरंदाजों को पहाड़ी पर मुकर्रर करो। ये लोग खालिद की बड़ी अपोजिशन में थे, उन्होंने दिमाग लगाया कि सामने जिंदगी सब इनके माइंड को मतलब मुंतशिर करना है, माइंड गेम जिसको कहते हैं, इनको ओवर कॉन्फिडेंस मिला देना है। ये खालिद वलीद का ये मामला था। 50 तीर अंदाजों में 25 जो है एक तरफ हो गए कि भाई मामला खत्म हो गया, चलो माले गनीमत उठाते हैं। 50 किताब नहीं, जब तक नबी का हुक्म नहीं आएगा, तब तक के हुक्म सानी ना आया, हम यहाँ से हटेंगे। अल्लाह ने इसका जिक्र किया, तनाज़ातुम फिल अम्र, और आपस में तुम झगड़ पड़े, मतलब इख्तिलाफ कर रहे। जो असैतुम मिन बादी मा अराकुम, वो असैतुम और तुम नाफरमानी भी कर लिया। यहाँ पे देखिए लफ्ज़ अल्लाह ने इस तरह को असैतुम, असैतुम मतलब तुम नाफरमानी किए, यानी जो लोग चले गए माले गनीमत उठाने, उसको अल्लाह ने नाफरमानी कहा। सहाबा की बात हो रही है यहाँ पे, यानी सहाबा की बात हो रही है, सहाबा जिनके बारे में अल्लाह ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह जिनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी। उनके बारे में अल्लाह ने कहा सही तुमने नाफरमानी की, मिन बाद मा अराकुम मा तुहिब्बून, फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको वो चीज दिखाई जो तुमको पसंद था। क्या? पता दिखाया, पता मक्का हो गया। ये ओहद के बाद बहुत पस्त पड़ गए थे सहाबा। और गज़वा ओहद में एक प्रॉब्लम ये भी था कि अब्दुल्लाह इब्न उबई जो रईसुल मुनाफिकीन था, मुनाफिकों का सरदार, ये मुसलमानों की सफर में था। जंग में तो नहीं था, लेकिन इसके लोग थे, इसीलिए ना मशवरा दिया था ओहद में कि हम लोग मदीने में रह कर लड़ते हैं। मकसद क्या था कि ऐसे मान लीजिए मुसलमानों की फौज रहेगी, उससे काफिरों की रहेगी, हम लोग पीछे तलवार लेकर आएंगे, काफिर इधर से मारे, इधर से हम भी मारे, खत्म मुसलमान। आजकल ऐसे ही हो रहा है। ये नक्शा जो कुरान ने खींचा, इसलिए कहा कि कुरान को उसवा बनाओ, आइडियल बनाओ। कुरान बहुत कुछ सिखलाता है। इस तरह की आयत को अपनी जिंदगी में नाफिज कर सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि आजकल समझ ही में नहीं आता कौन अपना कौन बेगाना है, तो पता ही नहीं चलता है किस पर भरोसा करें, किस पर ना करें। कुरान पढ़े आपको समझ में आएगा किस पर भरोसा करना है, उसकी निशानियां बयान की गई है। कुरान पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, दोस्त की पहचान किन चीज़ों में करनी है, दुश्मन की पहचान किन चीज़ों में करनी है, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने कहा। तो फिर अल्लाह ने तुमको वो चीज़ दिखाई तुमको पसंद है जी। मिनकुम मैं युरीदु दुनिया, तुम में से कुछ लोग दुनिया चाहते थे, और मिनकुम मैं युरीदुल आखिरत, और तुम में से कुछ आखिरत चाहते। यहाँ पे देखिए ये तो सब सहाबा। अब जो सहाबा माले गनीमत बटोरने गए, समेटने गए, इकट्ठा करने गए, उनको अल्लाह कह रहा है कि मिनकुम मैं युरीदु दुनिया, तुम में से बात दुनिया चाहते थे। तो हम लोग किस पे के मूल्य, उनको अल्लाह कह रहा है, सहाबा को कह रहा है कि तुम में से बात दुनिया चाहते थे, क्यों गए तुम वहां पर? तुमको नहीं पता था कि नबी ने कहा था जब तक मैं ना कहूं नहीं हटना है, चाहे कुछ भी हो जाए? क्या तुम अपने नबी की बात में इंतजार नहीं कर सकते थे? क्या नबी तुमको रख कर छोड़ देते साल साल भर, भूल जाते कि हाँ किसी को मैं तैनात किया था? क्यों तुम गए? दुनिया, तुम में से बात दुनिया चाहते हैं। सोचिए, सुनकर कितना अफसोस हो रहा है कि अल्लाह ने सहाबा के बारे में कहा
हम तो ना जाने दिन रात दुनिया ही के लिए जी रहे हैं, तो हमारे बारे में अल्लाह क्या सोचेगा? बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अल्लाह ने एक चीज़ भी कहा कि वमिनकुम मन युरिदुल आखिरह, और तुम में से बहुत से लोग जो आखिरत चाहते थे, सुम्मा सरफकुम अन्हु लियब्तलियकुम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन चीज़ों को फेर दिया ताकि तुमको आजमाए। यानी अल्लाह ने शिकस्त में बदल दिया, जीत को, फतह को हार में, शिकस्त में तब्दील कर दिया। क्यों? लियब्तलियकुम, ताकि तुमको आजमाए। ये भी कुरान देख कितने जिंदगी का दर्द दे रहा है कि अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारी जीत को हार में बदल दिया ताकि तुमको आजमाए। तो अल्लाह ताला अगर कोई चीज हमसे छीन ले, सब्र रखना चाहिए, आजमाने के लिए छीनता है, घबराने की बात नहीं। कोई चीज अल्लाह हमसे छीन ले, सब कुछ ठीक रहा था, कुछ गड़बड़ आ गया जिंदगी में, अल्लाह ने छीन लिया सुकून, इत्मीनान, घबराएंगे। अल्लाह आजमा रहा है, सिर्फ अल्लाह देकर नहीं आजमाता है, लेकर भी तो आजमाता है। एक चीज को हम समझ रहे हैं, और कोई कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। अल्लाह लेकर भी, कोई बच्चा हुआ 4 साल का बेचारा बन गया, माँ बाप के लिए आसान नहीं है। गोद में खेलने वाला, साथ में सोने वाला, साथ में रहने वाला, मम्मी पापा बोलने वाला, अम्मी अब्बू कहने वाला, आज उसको खबर उतार के हम चले हैं, हम लोग घर में सो रहे हैं, खबर के हम देख लगे मेरा बच्चा सोया हुआ है। सोचे, सोचने पे दिल में कितना दुख उठता है। अल्लाह सबके बच्चों को महफूज सलामत रखे, आमीन। तो अल्लाह कह रहा है कि हमने फिर उसे उनको दरगुजर कर दिया ताकि तुमको आजमाए, तुम्हारी फतह को, तुम्हारी जीत को हमने शिकस्त में तब्दील कर दिया। क्यों तब्दील किया? ताकि तुमको आजमाए। वलकद अफा अन्कुम, और तुमको माफ भी कर दिया अल्लाह ने। चलो कोई बात नहीं, दोबारा ऐसा मत करना, माले गनीमत के चक्कर में मत पड़ना, जब तक कि नबी ना कहे तुम अपनी जगह को छोड़ना मत। ये वो हुक्म था। देंगे और केवल जो आयत नाजिल हुई तो उसके बाद सहाबा ने कभी मुखालफत नहीं किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए अल्लाह ने क्यों ये चीज होना भी जरूरी था, जो था कि सहाबा ने कभी मुखालफत नहीं, किसी भी काम को किसी सहाबा को अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, सहाबा उसको बढ़कर करते। ये वो मौका था गज़वा उहद। अल्लाह ने कहा सुम्मा अफा अन्कुम, कि अल्लाह ने माफ भी कर दिया, अल्लाह ने तुमको माफ कर दिया। वल्लाहु ज़ू फज़्लिन अलल मुमिनीन, और अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों पर बड़ा फजल वाला है। अब यहाँ पे देखिए अलल मुस्लिमीन, अल्लाह ने नहीं कहा कि अल्लाह मुसलमानों में बड़ा फजल वाला है। सोचिए, अल्लाह मुसलमानों पर भी बड़ा फजल वाला है, ये अल्लाह ने नहीं कहा। मुसलमान सब है, मोमिन कौन है? मुसलमान सब है, हम सब मुसलमान, माशाअल्लाह। मुसलमान तो है, मोमिन कौन है? मोमिन अल्लाह पर ईमान लाने वाला, नबी पर ईमान लाने वाला, रसूलों पर, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाने वाला, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाने वाला, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाने वाला, क़यामत के दिन पर ईमान लाने वाला, तकदीर की अच्छी या बुरी हो उस पर ईमान लाने वाला, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों। मोमिन की तारीफ क्या है? जो इन चीजों पर थ्योरी भी हो और प्रैक्टिकल भी, वो मोमिन है। हम मोमिन कैसे समझते हैं? सिर्फ थ्योरी को। आपसे पूछिए, आप नबी को मानते, बहुत मानते हैं, है कि नहीं? आप कुरान को मानते, पूरा मानते हैं, मेरे घर में कुरान है, अमल कितना करते हैं? अमल में क्या मामला है आपका? तो यहाँ पे हम लाजवाब होते, इसीलिए अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वल्लाहु ज़ू फज़लिन अलल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों पर बड़ा फजल वाला है। उसके बाद अल्लाह ने आयत नंबर 153 153 में कहा, इज़ तुसइदूना वला तलऊना अला अहदिन, जबकि तुम आगे बढ़ रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे, शिकस्त हो गई थी, भगदड़ मच गया। शिकस्त के बाद कितने सहाबा इकराम को दुश्मन फौज ने वहीं पर कत्ल कर दिया, क्योंकि बैलेंस बिगड़ गया, 50 तीरंदाज थे, 2 राय हो गई, इख्तिलाफ हो गया। ये भी दर्स मिलता है गज़वा उहद से कि इख्तिलाफ इंसान की नींव और जड़ को कमजोर कर देता है। याद रखिए, इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। कोई चीज हो, जैसे घर, एक परिवार है, एक माशरा है, एक कम्युनिटी है, जो भी जहाँ भी है, ताल्लुकात है, दोस्ती है, रिश्तेदारी है, इख्तिलाफ को पनपने ना दो। कितनी चीजें इख्तिलाफ होगा, लेकिन उसको हैंडल कर ले, तो क्या होगा? हमारी जड़ जो बुनियाद वो कमजोर हो गई। आज देखिए कि हमारे माशरे के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस उम्मत को, जिस कौम को दुनिया का दर्स देना चाहिए था, आज उस कौम को दुनिया दर्स देती है। आप ऐसा मत करें, आप लोग मिलजुल के रहे, दोनों भाई हैं, एक माँ से हैं, साथ में रहे। आज ये सब चीजें क्यों हुआ? एक प्रैक्टिकल बात बताएं कि आज इसी इख्तिलाफ की वजह से कि हम सिर्फ पढ़ते हैं, कमेंट्स वगैरह, फेसबुक वगैरह, कोई अच्छी चीज आगे, थॉट आ गई तो पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात है,
کہ ہم لوگ جب بچے تھے 5 بیٹے تھے یا 5 بیٹیاں تھیں، سب ملا کے 6-7 بچے تھے، ایک ہی ماں باپ پوسی ہے سب، ایک ہی ماں باپ، 7 ماں تھی، 7 ماں نہیں تھی، 7 باپ نہیں تھی، ایک ہی ماں باپ 7 بچوں کو پوس لیے کہ نہیں پوس لیے، پرورش کر لیے، پڑھا دیے، لکھا دیے، لیکن یہ 4-5 بچے مل کر ایک باپ کو نہیں سنبھال پائے۔ جب باپ پڑ جا رہا ہے بستر پہ تو تاکہ تاکی ہو رہا ہے، دیکھا دیکھی ہو رہا ہے، انتظار ہو رہا ہے کہ بڑکا بھیا کا پتہ کچھ آیا ہے پیسہ وسا کا، ہم ہی لے کے دوڑے، بڑکا چھوٹکا کو دیکھ رہا ہے، چھوٹکا مجید کا کو دیکھ رہا ہے، مجید کا سجید کا کو دیکھ رہا ہے، تاکہ تاکی ہو رہا ہے، کمپٹیشن ہو رہا ہے، جبکہ شاید ہی کوئی سا بچہ ہوگا جو کہے گا میرا باپ ہے مجھے کی فکر نہیں، جیسے میرا بچہ پڑ جائے گا تو ہم دنیا کے انتظار میں رہیں گے، تو کوئی دے گا تو ہم کو علاج کروائیں گے، ہم خود دوڑیں گے، میرا بیٹا ہے میری بیٹی ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ ہونا چاہیے، کون آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، دنیا اس کو گیمر اور اس کو چلاک سمجھتی ہے جو اپنا پیسہ بچا لیا، اچھا ہوا آپ نہیں گئے، آپ کا بھی لگ جاتا ہے، دیکھیے آپ کا بڑا بھائی 60,000 کا آپریشن کرا ہے، مر گیا نا بلوا، آپ کا پیسہ ڈوب جاتا، بچ گیا نا آپ کا، آپ جائیے تھوڑا کپڑا دفعہ میں 5 کلو دے کے ہمیں لاٹائیے، اللہ آپ کو بھی اولاد دیا ہے، ہمیں بھی اللہ اولاد دیا ہے، ہمارا آج کل طے کرے گا، یاد رکھیں آج ہمارا کل طے کرے گا، آج ہمارے معاملات ماں باپ کے ساتھ صحیح رہیں گے، کل ہمارے بچے ہمارے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ دنیا میں اختلافات ہے، یہ سب دیکھا دیکھی ہے، کمپٹیشن ہے، ایک دوسرے کا انتظار کیوں ہو رہا ہے، سب چیز معلوم ہے، دین نہیں ہے ہمارے اندر دین نہیں ہے، دین کی کمی کی وجہ سے، قرآن کی کمی کی وجہ سے جو نالج نہیں ہے، آج ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ اس امت کو دنیا کو سکھانا چاہیے، دنیا اس امت کو سکھانا ایسے کریں۔ اللہ نے آگے بیان کیا والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول کو پیچھے سے آواز دے رہے تھے، رسول کو پیچھے چلا رہے رکو رکو رکو، نبی چلا رہے تھے۔ معاملہ یہ ہوتا کہ جب یہ لوگ ہمارے غنیمت اٹھانے گئے 25 صحابہ، اور 25 صحابہ وہیں رہ گئے، تو اب حملہ ہو گیا پیچھے سے، خالد بن ولید کے لشکر نے حملہ کر دیا کافروں نے، اور اس میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے احد میں۔ اب جب کہ ایک مورچہ ہمارا ٹوٹ گیا دشمن کو روکنے کے لیے تھا تو اس کے اندر، تو اب بھگدڑ بچ گئی جان بچانے کی، پہلے جان بچائیں گے اس کے بعد آپ لیں گے، مورچہ پہ تو مار کھا گئے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ پیچھے رہے، اب صاحب اللہ کا نبی چلا رہے ہیں، ارے رکو رکو کہاں جا رہے ہیں، ارے اللہ کے بندو رکو، اللہ کے بندو رکو، لیکن بھگدڑ کو سنائی نہیں دیا کہ کوئی آواز دے رہی، اللہ نے کہا ورسول یدعوکم، رسول تم کو بلا رہے تھے، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، رسول آواز دے رہے تھے، فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، بس تم پر غم پہ غم پہنچتے چلا گیا، غم پہ غم، مصیبت پہ مصیبت تمہارے اوپر پہنچتی چلی گئی، لیکن لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو کچھ تم نے کھو دیا ہے، جو کچھ گوا دیا ہے، تم اس پر غم کرو، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو کچھ مصیبت جو تمہیں پہنچی ہے اس پر تم کو فکر کرو کہ یہ غم یہ مصیبت کیوں پہنچی ہے، یہ کیوں ہمارے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے، اللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کرو اللہ جانتا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 154، ایک بہت لمبی چوڑی آیت ہے، غزوہ احد کے بارے میں۔ دیکھیے اتنا کچھ اللہ نے غزوہ احد کے بارے میں بتایا، اس میں ایک چیز جو اللہ نے کہا کہ منکم یرید الدنیا، تم میں سے کوئی دنیا چاہتے تھے، تو صحابہ تھے، صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا تم دنیا چاہتے، صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم دنیا چاہو، سوچے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ کوئی چیز اللہ نے تم سے چھین لیا ہے اس لیے تاکہ تم کو آزمائے، یہ دو چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب دیکھیے آگے اللہ نے کہا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سکونت کو نازل کیا، اللہ نے سکونت نازل کی، تم میں سے ایک جماعت نے اونگ میں چلے گی، اونگ ہوا یہ جب بھگدڑ مچی اور ایسا لگا کہ اگر اللہ یہ اونگ یہ سکونت نہیں دیتا سارے مسلمان مارے جاتے، اونگ اور کیا دیا اللہ نے، اونگ آنے لگی، اس کی نیند آتی ہے نا ہم کرنے لگتے ہیں اونگ کی طرح، اللہ نے نازل کر دیا۔ اس طرح رضی اللہ عنہ حدیث کراوی کو بیان کرتے ہیں کہ ہمیں خود میں شامل تھا، اور بار بار میرے ہاتھ تلوار چھوٹ جاتی، بار بار میرے ہاتھ سے ہاتھ میں تلوار لی اور اللہ نے اونگ تاری کر دی، تو ٹینشن ڈپریشن کہ مورچہ کھل گیا ہے، جس کو باندھ کے وہ رکھے تھے اب وہ لشکر گھس چکی ہے، کوئی نہیں بچے گا، تو اس
उससे फ्री करने के लिए अल्लाह ने ओम नाजिल कर दिया। अब साहबा है हाथ में तलवार छूट जाए, फिर उठा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, फिर छूट जाएगा। तलहा कहते हैं कई बार तलवार मेरे हाथ से छूट गई। ये ओम क्यों आया? इसका ताल्लुक कैलुला से। कैलुला जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जोहर की नमाज पढ़ के खाना खा के हल्की सी नींद सो, हल्की सी नींद सो लो। फ्रांस में और चाइना में ये गवर्नमेंट के सर्कुलर में है कि आपको खाकर सोना ही हो 5 मिनट 10 मिनट। तो लंच टाइम होगा, बिस्तर पे टेबल पे काम करने वाले ऑफिसर लोग हैं, टेबल पे बैठे हुए हैं, खाए और सो। आपको हल्की नींद में जाना है, बिस्तर नहीं देगा गवर्नमेंट, हल्की नींद में आपको जाना है। क्यों जाना है? उन लोगों का कहना है कि साइंसी रिपोर्ट जो है कि इससे जो अंग है इंसान के, जो आशा है, पार्ट पुर्जे हैं, वो फिर से ताजा हो जाते हैं। इसीलिए आप दोपहर में खाना खाकर हल्की सी नींद सोना है। ऐसी नींद नहीं कि आसानी गायब हो गई, वो वाला नींद नहीं। दोपहर में कुछ लोग सोते हैं मगरिब में उठते हैं, वो नींद नहीं, हल्की नींद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ा के सो जाए, आधा घंटा 20 मिनट 15 मिनट। और जब प्रैक्टिकल देखिए, आप जब उठेंगे दोपहर में सोए खाकर और असर में जब उठिएगा कि आपकी तबीयत कितनी अच्छी है। और सेहत का भी राज नहीं है, इससे बहुत सी चीज़ों के लिए आदमी परेशान है। तो कैलुला तो आजकल खत्म हो चुका हमारे माशरे से। कैलुला है कहाँ? हमारे घर के औरतें असर में खाना खा रही हैं, कैलुला का असर बात करेंगे। सोचिए, कैलुला कब है? जोहर के बाद। यहाँ पे जो हल्की नींद अल्लाह ने क्यों दिया? ये कैलुला की तरफ इशारा है। वो जो ओम आया, इनकी हिम्मत बन गई। जब दोबारा ओम से उभरे ऊपर, जब अल्लाह ने पूरा होश दिया तो पूरे भरपूर जोश से जोशीले हो गए। ऐसा लगा कि कोई टेंशन अब नहीं है, बहुत था। अल्लाह ने उनको ओम तारी कर दिया। मिनकुम व ताइफतुन कद अहम्मतहुम अनफुसुहुम। तो एक जमात ऐसी थी जिनको ऊँग आ गई। वो ताइफतुन कद अहम्मतहुम अनफुसुहुम, एक जमात ऐसी थी जिनको खुद का खतरा पैदा हो, मुनाफिक थी। एक जमात ऐसी थी जिनको अपनी जान की पड़ी थी, मुनाफिकीन थी। मुनाफिकीन को डर होने लगा। वो क्या सोचते थे? यज़ुन्नुना बिल्लाहि गैरि हक़ के ज़न्न जाहिलियता। वो अल्लाह के ताल्लुक से बगैर कोई एविडेंस सबूत के, दलील के, बगैर हक के, नाहक जो है अल्लाह के साथ वो बदगुमानी करते, जाहिलियत की बदगुमानी करते थे। जाहिलियत वाली बदगुमानी। यक़ूलूना, वो कहते थे हल लना मिनल अम्रि मिन शै, क्या हमारे लिए कुछ इख्तियार है? हल लना मिनल अम्रि मिन शै, क्या हमारे लिए कुछ इख्तियार है? यानी होता है ना कि एक फतह शिकस्त में तब्दील हो गई, तो एक तंज बार में जाए तो नहीं बोल सकते हैं भाई आप लोग क्या क्या डिसीजन ले लिया, आप लोग को पहले बोला गया था। तो अब वो आ रहे हैं कि हम कुछ कर सकते तो बोलिए, कर देंगे। जैसे हम लोग कहते हैं आजकल के रिश्तेदारी में नाराज फूफा तो कहते हैं कर देते हैं, हमको क्या है बोलोगे तो कर देंगे, हमको किससे क्या नहीं है। अजान हो रही है, अजान के बाद इशारा कर दोबारा दर्स को शुरू किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुनाफिकों ने कहा, वो कहते हैं कि हल लना मिनल अम्रि मिन शै, कि हमारे लिए कुछ इख्तियार है। कुल ए नबी कह दीजिए, इन्नल अम्रा कुल्लहु लिल्लाह, सारे इख्तियारात अल्लाह के लिए, किसी इख्तियार में कुछ नहीं, सब इख्तियार का कंट्रोल अल्लाह के हाथों में। युखूना फी अनफुसिहिम मा ला युबदूना लका, वो आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं, आपके लिए जाहिर नहीं करते। यक़ूलूना, तो कहते हैं लौ कान लना मिनल अम्रि शैउन, अगर हमारे पास कुछ इख्तियार होता तो मा कुतिलना हुना, जो यहाँ पर कत्ल हुआ नहीं होता। देखिए मुनाफिकीन कैसे इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं कि अगर हमारे इख्तियार में, कहते हैं लौ कान लना मिनल अम्रि शैउन, अगर हमारे कंट्रोल इख्तियार में कुछ भी होता, मा कुतिलना हुना, यहाँ पे जो कत्ल हुआ है वो नहीं होता। कुल ए नबी आप कह दीजिए, लौ कुंतुम फी बुयूतिकुम, अगर तुम अपने घरों में रहो, लबरज़ल लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्ल, और अगर आपके मुकद्दर में मरना है, इला मज़ाजिहिम, तो मौत आपको अपने बिस्तर से उठा कर जगह पड़ेगी। अल्लाह ने कहा कि बहुत मुनाफिकों से कह रहे कि अगर हमारे प्यार में आता, हमारे साथ चलते, इतने सहाबा नहीं मारे जाते, इतने मारे गए। अल्लाह ने कह दिए कि अगर तकदीर में, मुकद्दर में मौत है, तो बिस्तर से उठा कर अपनी जगह पे ले जाएगी जहाँ मौत होना है। तो चाहे तो अपने घर के अंदर ही क्यों ना हो, मौत अपनी जगह पर पहुँचा देगी। वलियब्तलियल्लाहु मा फी सुदूरिकुम, अब जो कुछ तुम्हारे दिलों में है वो इसलिए अल्लाह चाहता है कि उसको आजमाए। वलियुमहहिसा मा फी कुलूबिकुम, और जो कुछ आपके सीनों में, दिलों में, अल्लाह उसको पाक कर दे। वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन सीनों के
भेद को जानने वाला है। यहाँ तक दर्स मुकम्मल हुआ, इसमें कोई भी सवाल हो ऑनलाइन या ऑफलाइन तब तो पूछ सकते हैं। आयत नंबर 154 जो खत्म हुआ उसमें अल्लाह ने कहा कि सुम्मा अनज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मि अमरतन नुआसन, फिर इस गम के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुकून को नाजिल कर दिया। अनज़ला अलैकुम तुम्हारे ऊपर सुकून नाजिल कर दिया। नुआसन यगशा ताइफतुम मिनकुम, तुम से एक जमात जो है ओंघ लेने लगी, ओंघ तारी हो गया। तो ताइफतुन कद अहम्मतहुम अनफुसुहुम, और एक जमात उसमें से ऐसी थी जो अपनी जान के परे हुई। यज़ुन्नुना बिल्लाहि गैरिल हक़ की दरल जाहिलियता, ये जो जमात मुनाफिकों की, ये अल्लाह ताला के ताल्लुक से अल्लाह के साथ बगैर कोई दलील सबूत के, बगैर हक के, नाहक जाहिलियत की बदगुमानी करते थे। यक़ूलून, वो कहते थे कि हल लना मिनल अम्रि शै'उन, क्या हमारे लिए कुछ इख्तियार है। कुल, ए नबी कह दीजिए, इन्नल अम्रा कुल्लहु लिल्लाह, सारे इख्तियारात अल्लाह के लिए। युख्फूना फी अनफुसिहिम मा ला युब्दूना लका, ये आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं उनके दिलों में और उसको आपके लिए जाहिर नहीं करना चाहते। यक़ूलून, वो कहते हैं कि लौ कान लना मिनल अम्रि शै'उन, अगर हमारे लिए कुछ भी इख्तियार होता, मा क़ुतिलना हुना, यहाँ कोई कत्ल ना होता। कुल, ए नबी कह दीजिए, लौ कुंतुम फी बुयूतिकुम, अगर तुम अपने घरों में हो, लबरज़ल लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्ल, और आपकी तकदीर में अल्लाह ने मौत को, कत्ल को लिख दिया है, तो इला मज़ाजिही, वो आपको बिस्तर से उठा कर पहुंचा देगा। वलियब्तलियल्लाहु मा फी सुदूरिकुम, और ये सारी चीज़ इस वजह से है कि जो कुछ आपके सीनों में अल्लाह उसके जरिए से आप आजमाए। वलियुमहिसा मा फी कुलूबिकुम, जो कुछ आपके दिल में उसको पाक कर दे। वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह ताला सीनों के भेद को जानने वाला है। अगर सवाल है मुनाफिक किसे कहते हैं? सवाल ये कि मुनाफिक किसे कहते हैं, उसकी तारीफ क्या है। मुनाफिक की किताब और सुन्नत के अंदर, यानी अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी सिफात को बयान किया। असल में सबसे पहले मुनाफिक की तारीफ क्या है। मुनाफिक की तारीफ ये है कि कोई इस्लाम को जाहिर करे और दिल में बुग़्ज़ रखे इस्लाम के खिलाफ, उसको मुनाफिक कहते हैं। इसको कहते हैं कि जो इस्लाम को जाहिर करे कि हम मुसलमान हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब कुछ मुसलमानों की सफ़ों में रह के करना है, लेकिन हकीकत में मुसलमान नहीं है। उसके दिल में उसके दीन के लिए मोहब्बत है, इस्लाम में दीन इस्लाम के लिए मोहब्बत नहीं है। वो दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनके अंदर अफरा तफरी का माहौल बनाने के लिए वो मुसलमान का लिबादा ओढ़कर शामिल किया, उसको मुनाफिक कहते हैं। शॉर्ट में, जो इस्लाम को जाहिर करे और कुफ्र को दिल में छुपाए, उसको मुनाफिक कहते हैं। एक सवाल ये है कि बीफ यानी गाय का जो गोश्त है, क्या ये खाना बिल्कुल ज़रूरी है कि इसको खाना ही है, या इख्तियार है कि खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते। और उसी में एक और सवाल ऐड है कि कौन कौन सी जानवर के गोश्त हलाल है। खाने पीने के ताल्लुक से सवाल है। सबसे पहला सवाल ये है कि बीफ के बारे में, गाय गोश्त के बारे में। तो देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों को हलाल किया है उसे कोई हराम नहीं कर सकता, और जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम किया उसे कोई हलाल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि बीफ के गोश्त का हुक्म क्या है। ये हलाल है, हलाल जानवर है, खाने का है, खाने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। लेकिन जो सवाल है कि हम जरूरी है खाना, ये समझने वाली चीज़, ये तो आदमी की तबीयत के ऊपर है। सवाल ये है कि उसका ईमान उसको क्या एक्सेप्ट कर रहा है, हराम कर रहा है कि हलाल एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे झींगा जिसको बोलते हैं, वो समुद्री कुछ होता है, चिंगड़ी की तरह होता है। क्या चिंगड़ी है ना, चिंगड़ी को झींगा बोलते हैं। हाँ, वो कुछ तो इसके खाने में रसूल ने नापसंदीदगी का इजहार किया, नापसंदीदगी इजहार किए थे। तो नापसंदीदगी का मतलब उनको पसंद नहीं था, उनको पसंद नहीं था, लेकिन वो हलाल है। घोड़ा का गोश्त, घोड़ा जिसका हम सवारी करते हैं, हॉर्स जिसको बोलते हैं,
वो हलाल है, लेकिन हम नहीं खाते हैं। शायद हमें से किसी को याद नहीं हो कभी खाए होंगे। ऊँट का गोश्त हलाल है। अब जो अरब की सरजमी पे रहते हैं वो तो खाते, लेकिन जो हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ आज तक कहीं भी ऐसा दुकान नहीं मिला जहाँ ऊँट का गोश्त मिले। हम तो शायद नहीं जानते, ऊँट ही नहीं मिलेगा दुकान कहाँ से मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि गाय का गोश्त का जो हुक्म है किताब सुन्नत के अंदर, वो हलाल जानवर है। अब रहा सवाल खाना ना खाने का, तो ये हर इंसान के साथ अलग अलग मसला है। इख्तियारी नहीं हो सकती। इख्तियारी उस वक्त होगा कि ये भी कर लेंगे तो सही, वो भी कर लेंगे तो सही, ऐसा नहीं है। हुक्म ये है कि हलाल है, खा लेंगे तो गुनाह नहीं होगा। समझ आइए, गाय का गोश्त मन नहीं है लेकिन खा लीजिए, गुनाह नहीं होगा। हुक्म हलाल चीज है। नहीं खाते, हमारी तबीयत पसंद नहीं है, वो एक अलग चीज है कि हमारी तबीयत पसंद नहीं करती। हाँ, उसमें भी ऐड है कि क्या जरूरी है खाना? नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है खाना। आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है, समझ में आए तो खाए ना। लेकिन हम ये अकीदा, ये ईमान रखें कि वो हलाल है, वो हलाल है, वो हराम नहीं है। हम नहीं खाते इस वजह से कि इस वजह से नहीं वो हराम है, इस वजह से नहीं खाते कि तबीयत नहीं चाहिए। ये दोनों अलग चीज है। समझ आ रही है? हुर्मत वैसे नहीं खा रहे, कराहियत महसूस हो रही है, नहीं मन करा, हमको पसंद नहीं है वो चीज। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई को हम जानते हैं जो भी नहीं खाते, उनको पसंद नहीं है। अब ये कि दूसरा सवाल कि कौन कौन से जानवर हलाल है, एक बहुत बड़ा बहस है। तो इसमें शॉर्ट में समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन जानवरों के बारे में बयान किया, जैसे ऊँट है, भैंस है, गाय है, बकरा बकरी है, दुम्बा है, भेड़ है, उसके बाद घोड़ा है, ये सब के गोश्त जो है हलाल है। हुर्मत में जिन जानवरों का जिक्र आया हुआ है उसमें है कि जी नाप बोलते हैं जिनके दो दांत निकले हुए हैं, शिकार करते हैं, जैसे कुत्ता है, उसका दो दांत निकले हुए जिनाब बोलते हैं। शेर दो दांतों से वो शिकार करता है। और पंजे वाले जानवर का जिक्र आया हुआ है, जिनके पंजे होते हैं, पंजों से शिकार करते हैं, ये जानवर हराम है। चील हुआ, बाघ और पंजे से शिकार करते हैं, बंदर है पंजा मार देता है, सब चीजें हैं, है ना। तो पंजों से शिकार करते हैं, और जो जो दांतों से शिकार करते हैं उनके गोश्त जो है हराम है। मछली है वो जायज है, हलाल है, क्योंकि जानवर नहीं आता, वो फिश है, पानी का जानवर बोल सकते हैं उसको, तो वो जिंदा भी हलाल है और मुर्दा भी है। आपके वाली बात है, वो सब सांप नहीं रहता है। मछलियाँ वाला अच्छा कुछ समझ करके भेजे थे ना, इसलिए बता दूँ। हाँ, सवाल ये है कि यह सवाल जो लिखा हुआ है कि हम फातिहा खाना क्यों नहीं खा सकते, है ना। सवाल अच्छा सवाल है और पूछे जाना भी चाहिए कि जो जैसे हमारे यहाँ होता है बड़े सगे के पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, कि खाना जब पकता है या कोई ओकेशन खास कर डेली तो नहीं होता है, कोई प्रोग्राम में होता है, तो खाना जैसे शादी का खाना हो या दीगर कोई प्रोग्राम घर में चल रहा है तो उसको फातिहा पढ़ते उसके ऊपर। और सवाल में ये भी ऐड है कि उसमें तो अल्लाह ही का नाम लिया जाता है ना। तो क्या हम क्यों नहीं खा सकते? खाने का हुक्म क्या है? देखिए, हम हर कोई भी दीन इस्लाम के अंदर कोई भी खाने पीने के ताल्लुक दीगर कोई भी चीज हो, क्यों या कहाँ का जब बात आती है उसमें हमें हर मामलात में अल्लाह के रसूल की जिंदगी पे जाना है कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। ऐ नबी, आज के दिन हमने आपके ऊपर दीन को मुकम्मल कर दिया। ये दीन को मुकम्मल करने का मतलब ये होगा कि दीन में घटाव बढ़ाव नहीं हो सकता, तो कोई अपनी मर्जी से घटा दे, कोई अपनी मर्जी से बढ़ा दे। सवाल ये है कि उसमें तो अल्लाह ही का नाम लिया जाता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? खा सकते हैं। सवाल ये नहीं कि अल्लाह का नाम लिया जाता है, सवाल ये है कि क्या खाने पीने के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल की चीज साबित है कि नहीं। अगर हम हदीस का मुताला करेंगे तो हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई भी सामान को खाते हैं तो बिस्मिल्लाह कहते हैं। साहबा ने पूछा बिस्मिल्लाह क्यों कहते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि इससे बरकत होती है खाने की। दाहिने हाथ से खाना, बिस्मिल्लाह करके खाना, ये सब एक एक दाने को खाना, प्लेट को चाट कर खाना, पता नहीं कि किस दाने में बरकत छुपी हुई थी, है ना, इस तरह की रिवायत आती है। तो ये तरीका है खाने पीने के ताल्लुक से। अब आ गया कि फातिहा पढ़ा जाए, उसमें अल्लाह ही का नाम लिया जाता है,
اس میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام ہم نبی کی زندگی میں دیکھیں، نبی نے کیا ہے، اس طرح کے ثبوت ہے، شواہد ہے، بالکل ہم کریں گے. اس طرح کے شواہد نہیں ہے تو نہیں کریں گے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں اللہ کا نام لیا گیا ہے. اب ایک آدمی سود کا کاروبار کر رہا ہے اور سود کا کھانا کو کھلا رہا ہے تو کیا بسم اللہ کرے کھا لیں؟ سوچے، سوچنے والی بات ہے تو مسلمان کاروبار سود کا ہوتا ہے نا. اور وہ کھانا لا کے پیش کر دیتا، بسم اللہ کرے کھا لے، اس لیے کہ بسم اللہ بولیں گے تو برکت ہو جائے گی. سود کی کمائی میں کیسے برکت؟ اسی طریقے سے یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں تو کھانے میں برکت کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ کر کے کھایا جائے. سامنے سے کھائے، کھانے کی پلیٹ ہے تو یہاں سے کھانا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، نہیں کہ تھوڑا یہاں سے کھائے تھوڑا یہاں سے کھائے، اس طریقہ بھی نہیں. تو کھانے پینے میں یہ چیز ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا وہ اللہ کا نام لیا گیا کہ کیا. جیسے گائے کا بھی ذکر آیا تو گائے کا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے. لیکن وہی گائے جب مر جائے گا تو کیا اللہ اور بسم اللہ کھا لے اس کو؟ اس کے حلال نہیں، مرنے کی صورت میں حرام ہے. مردہ نہیں کھا سکتے. وہی جانور جو حلال ہے زندہ کی صورت میں حرام ہے، مردہ کی صورت میں حرام ہے. دیکھیے یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. اسی لیے فاتحہ کی بھی معاملہ ہے. اس طرح کی روایت نہیں ہے، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. جو چیز ثابت ہے میں نے بتا دی. اس لیے یہ ایکسکیوز صحیح نہیں ہے کہ کیا وہ اس میں اللہ ہی کا نام لیا گیا ہے، تو صحیح نہیں. اگر اس طرح کی چیزیں ہم صحیح مان بھی لیں تب بچے ہمارے کیٹیگری کا کھاتے ہیں اس کو فتح کر دیں. جو چپس کھا رہے فتح کر دیں، کیا برکت سے پیچھے رہیں گے؟ پڑھتے رہے آپ سے برکت دیتے رہے. یہ بھی سوال ہے. جیسے ابھی آپ منافقت کا جو بیان کیا ہے جو موٹا موٹی سطح ہے، لیکن امام صاحب اس میں دیکھیے گا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار بتائے تھے حذیفہ بن یمان والا کیس ہے تو وہ بولے تھا نا کہ تم بتانا تو رسول اللہ وہ جبکہ وہ ماشاءاللہ اسلام کا مطلب کتنا خدمت گزار ہے، ان کا بارے میں کسی سے چھپا نہیں بہت سمجھ پھر بھی وہ کتنا اس وجہ اس کا وجہ بہت سا. دیکھیے اب سوال یہ ہے کہ جیسے کبھی منافق کا ڈیفینیشن بیان ہوا کہ جو اسلام کو ظاہر کرے اور دل میں کفر کو چھپائے وہ منافق ہے. جہاں تک تعلق ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہ وہ بھی جب مرض الموت میں تھے تو راجدار نبی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بلائیں یہ پوچھنے کے لیے کہ حذیفہ تم اللہ کے رسول کے سارے راز جانتے ہیں، اللہ کے رسول نے تم کو منافقوں کی لسٹ دی ہوئی ہے، یہ ابھی منافق ہے، یہ بتاؤ کہ کیا عمر کا بھی اس میں نام ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ عمر فاروق ایسا کیوں سوچیں گے جبکہ آپ مسلمان تھے، آپ تو منافق نہیں تھے ماشاء اللہ. دیکھیے اس کا دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ یہ عمر فاروق کی ایمان کا اعلیٰ نمونہ ہے، اعلیٰ ثبوت ہے. جیسے کیا ہوتا ہے آج کے زمانے میں یہ ٹاپک گزر چکی ہے کہ آپ عبادت پہ بھی گروہ شروع ہو گئے کہ ہاں بھائی ہم ہی عبادت کرنے والے ہیں، ہم بہت عبادت کریں، بہت ہم کیے ہیں، کیا بتائیں ہم سب تو ہم ہی کیے تھے. یہ عبادت پہ گروہ آج کل آ چکا ہے اور اپنے سامنے ہر آدمی کو ہم گنہگاری سمجھ رہے ہیں اور ہم ہی اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دیے ہوئے ہیں کہ ہم کیا صحیح ہیں، جبکہ ہمیں خود نہیں پتا کہ جو نماز ہم پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں وہ اللہ قبول کیا بھی نہیں کیا. تاکہ عمر فاروق کی اس واقعے سے نصیحت ہوتی ہے تو وہ چیزیں ہم بھی اپنے اندر لائیں کہ ہم نے ابھی عشاء کی نماز پڑھ لی اور اوور کانفیڈنس ہو گئے کہ قبول ہو گیا، نہیں روئے رات کو پھر اٹھ کر کہ اللہ پتہ نہیں دوبارہ کی نماز جو ہم پڑھیں کہ ان کو قبول کیا نہیں، اللہ قبول کر لیں. تو ایک چیز یہ چیز تھی ان کی ایمان کا اعلیٰ نمونہ تھا، رب بھی جانتے تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ صفات ہوتی ہے منافقوں کی. ایک تو پوری تعریف ہو کہ جو اسلام کو ظاہر کرے اور کفر کو چھپائے وہ تو مسلمان نہیں ہے نا، لیکن کچھ صفات ایسی ہے جو ان سے زیادہ خطرناک ہے. ہم مسلمان ہیں، دل میں بھی ایمان ہے، ظاہر میں بھی ایمان ہے، لیکن کچھ ان کی جو ہے صفات کو ہم نے لے لیا ہے. جیسے منافق جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھو تو امانت میں خیانت کرے گا، ہے نا. تو یہ کچھ صفات ہیں. عمر فاروق کو یہ بھی لگا ہوگا کہ ایسی تو نہیں کچھ صفات ہمارے اندر آ گئی ہوگی، اس سے پوچھ لیں. ہاں نفاق کا جو کیٹیگری ہے وہ ہمارے اندر آ گیا ہو سکتا ہے کچھ جھوٹ بول دیا ہو. تو یہ تو وہ اعلیٰ شخصیت ہے جو ہمیشہ پوری زندگی انہوں نے اپنے آپ کو گنہگاری مانا اپنے آپ کو. یہ بھی ایک تیسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ 10 صحابہ جو جنتی ہے دنیا کے اندر اور دنیا میں یہ خوشخبری اللہ نے دی کہ عمر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، پھر بھی عمر فاروق حذیفہ بن یمان کو بلا رہے ہیں. تو یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ عمر فاروق کو رسول کی بات پر یقین نہیں تھا. تم نے کہا نا 10 لوگ جنتی ہے دنیا میں، عمر فاروق بھی تھے، پھر بھی حذیفہ بن یمان کو بلا کر پوچھے حذیفہ میں منافقوں میں سے تو نہیں ہوں. یہ ان کا ایمان کا اعلیٰ نمونہ تھا. یہ چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. پوری زندگی ہے جتنا ابھی تک ہم نے عبادت کیا
हमेशा अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मुझे नहीं पता तूने कबूल किया नहीं किया, लेकिन तू कबूल कर। इस बात की सवाल है, आप दर्स में बताया आपने कि जितने भी 1,25,000 कमोबेश दिया सबका दावत एक ही कि एक अल्लाह को मान लिया जाए, और आज के दौर पर अगर देखें तो उस दावत को के लिए जो सिलेबस है उसे कुरान ही है सबसे इम्पोर्टेंट। तो मुसलमानों में बड़ी तादाद जो दावत का काम कर रही है, सब अपने अपने तरीके, लेकिन इस चीज़ पे बहुत कम है कि उस दावत पे और उस सिलेबस पे लोग जो है सवाल ये है कि 10 में बात गुजरा कि कम बेश कितना बचेगा? 8 सिलेबस है। सवाल ये है कि अब 10 में बात गुजर गया कि कम बेश 1,25,000 अम्बिया किराम इस दुनिया में आए और सबकी एक ही काम था। क्या काम था? कि एक अल्लाह की इबादत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। सवाल ये है कि आज के दौर में भी बहुत सारी तंजीमें हैं, इदारे हैं, भाई हैं, बहन हैं जो दीन का काम कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस क्या है उससे हट के काम कर रहे हैं। असल सिलेबस की होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कुरान, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने कुरान ही को नाज़िल कर दिया, इसी में सब कुछ बयान किया गया है। लेकिन जब हम दावत का काम करने जाते हैं सिलेबस से हट कर काम करते हैं। असल सिलेबस असल टॉपिक पे हम नहीं रहते। हाँ, सवाल तो बिल्कुल सही है कि कोई भी काम सिस्टमेटिक होगा तो अच्छा होगा। सिस्टम से हट के कोई काम करेंगे वो काम सही नहीं है, वो कभी भी काम ठीक नहीं हो सकता। अगर नबी की बात की जाए तो आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का काम किया, बड़ी हिकमत से, बड़ी चतुराई से, बड़ी समझदारी से आपने काम किया। जैसे एक मिसाल ले लीजिए कि जब सहाबा नए नए मुसलमान हुए तो सबसे पहले कब्रों की ज़ियारत पर मना कर दिया गया, ऑर्डर आ गया कि कोई भी कब्र की ज़ियारत नहीं कर सकता, ऑर्डर आ गया। जब मक्का फतह हो गया, मुसलमान की तादाद हो गई, तो ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब हुक्म हुआ, वो हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैंने पहले तुमको मना किया था कब्रों की ज़ियारत से, लेकिन अब मैं तुमको हुक्म देता हूँ कब्रों की ज़ियारत करो। इसमें हिकमत क्या है? सोचो, तलाश करें क्या हिकमत थी। हिकमत ये थी कि सहाबा अभी अभी शिर्क से निकल कर आए थे। होबल को पूछते थे, लात को पूछते थे, मनात को पूछते थे, उज्जा को पूछते थे, ये सब भूतों के नाम थे, पूछते थे। ये कब्र भी क्या है? भूत की तरह है। कब्र क्या है? भूत की तरह है। अंदर इंसान है, ऊपर मिट्टी है, जिंदा तो चीज नहीं कब्र। अल्लाह के रसूल को खौफ हो गया कि अगर अभी मैं ज़ियारत का हुक्म दे दूंगा तो यहाँ से निकल के वहां जाएंगे, सिर्फ टीम चेंज होगी, जर्सी सिर्फ बदलेगी, आदमी वही रहेगा। समझिए ना, वही कब्र फिर करने शुरू कर देंगे, वो उधर भी वही, इधर वही है, सेम चीज सेम सेम। अल्लाह का फैसला नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अल्लाह ने मना कर दिया, नहीं अभी कभी ज़ियारत नहीं करना है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पूरी हो गई, ईमान पुख्ता मजबूत हो गया, तो अल्लाह रसूल ने कहा कि जाओ कब्रों की ज़ियारत करो, इससे तुम्हारी आखिरत याद होगी। कितना सिस्टम से काम किया अल्लाह के नबी ने। उसी तरीके से दीनी काम का बेस होना चाहिए तौहीद। सबसे पहले अकीदा को स्टडी कीजिए। कोई नया आदमी, कोई नया भाई आता पूछता है कि भाई हम मुसलमान ही हैं लेकिन दीन से लगाव नहीं था, हम चाहते हैं कि कुछ स्टडी करें, तो देखिए याद रखिएगा, सबसे पहले तो तलकीन कीजिए कि तुम अकीदे के ऊपर किताब पढ़ो। अकीदा अगर तौहीद है याद है, वो हदीस है, तिरमिज़ी की रिवायत है कि एक आदमी इंतकाल कर रहा है, उसको नेगेटिव मत लीजिएगा, ये पॉजिटिव हदीस है। अगर कोई आदमी इंतकाल कर गया, उसकी मौत अकीदे तौहीद पर हुई तो वो जन्नत में जाएगा। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी अगर उसने जिना किया हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिना भी किया हो तो जन्नत में जाएगा, अल्लाह माफ कर देगा उसको। इसका मतलब ये नहीं कि अब जिना करना है हम अकीदे तौहीद पे नेगेटिव नहीं जाना। फिर हम बता रहे हैं, सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल अगर उसने जिना किया हो, तो अल्लाह के रसूल ने कहा उसने जिना भी किया होगा, अल्लाह ताला माफ कर देगा उसको। क्यों? क्योंकि तौहीद में उसकी मौत हुई। इसीलिए पहले चैप्टर है कि आप तौहीद पढ़ाएं। तो कुरान सबसे बड़ी दलील है अकीदा तौहीद की। कुरान का दर्स इसीलिए हो रहा है कि हमारा अकीदा सही है। सबसे पहले ये है सिस्टम। अगर तौहीद पे हम आ गए, ट्रैक पर आ गए, सही लाइन पे चल दिए, तो उसके बाद जो टॉपिक पढ़ना पड़ी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। सहाबा कोई नहीं पिघला सकता। सहाबा क्यों नहीं पिघले? क्यों नहीं दीन को छोड़कर भागे? क्यों नहीं माला दौलत के सामने झुक गए? क्यों? वो अल्लाह की इस कदर मोहब्बत कर बैठे थे क्योंकि यकीन हो गया था कि अल्लाह ही हमारी जिंदगी मौत का मालिक है, इबादत के लायक। तो ये सवाल सही था। और आप लोगों से भी दोस्त अहबाब में भाई अगर स्टडी के लिए बोले तो उसको पहले तौहीद की किताब दीजिए। भाई पहले अकीदा दुरुस्त करो। अकीदे दुरुस्त नहीं है, 60 साल नमाज पढ़ लिए, 4-5 मतलब हजों कर लिए, उम्रा का तो कोई लिमिट नहीं है, रोजा का कुछ नहीं है, अल्लाह जहन्नम में डालेगा। ये समझ लो ये तौहीद क्या है। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार आलम तू हम तमाम लोगों के हाजिरी को कबूल फरमा ले। तौहीद के लिए व्यक्ति सबसे अच्छी जो किताब बता दी, हाँ
तौहीद के लिए सबसे बेसिक जो किताब है मौलाना मुख्तार अहमद नदवी जो इंतकाल कर चुके हैं, उन्हीं का इदारा है जामिया मंसूरा मालेगांव के अंदर है। और तिबिया कॉलेज उनका चलता है, लेडीज के लिए डॉक्टर जामवंती, सब उन्हीं का बनाया हुआ है। वो इंतकाल करके उनका बेटा अरशद मुख्तार चलाते, उन्हीं की लिखी किताब है तकबियतुल ईमान, इसको नोट कर लें। तकबियतुल ईमान मेरे पास पीडीएफ में, हार्ड कॉपी नहीं, ला सकते हैं किताब दुकान से, किसी को पीडीएफ में चाहिए तो हमसे ले लो। तकबियतुल ईमान पतली सी किताब है, 30-40 सफ़े की होगी, लेकिन बड़ी बेहतरीन किताब है। उसके बाद बहुत सारी तौहीद की किताबें, किताब तौहीद बोल रही किताब है, तौहीद की बहुत सारी किताबें हैं, हम भेज देंगे, आप लोग उसको शेयर कर दीजिए। अल्लाह ताला हम सब की नेकी को कबूल करे, आमीन। वाक़ दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।